We are on module 1, where we are discussing the freedom of speech and freedom of information. These are a few topics that we have to cover within this module, and there are going to be different discussion and activities are going to be all the activities are going to be created in this course, and the assessment for this module, it will be a quiz, and that will happen once we cover the first module and the second module. So those of you who have not checked the course outline yet, please check it. You will understand that there is a quiz after every 2 modules. So in the last class, what we discussed was the concept of freedom of expression. What do we mean when we say that we need to express, and how we have been expressing ourselves over the years? What are the different things that are included in the term expression? Is it written expression, or is it spoken word, or is it painting, or is it dancing, or all of that? And that is something that we discussed, that expression can be of any kind. And then we of course try to discuss that what is the problem when we talk about freedom of expression. So we discussed different cases and different examples, that should there be an absolute freedom or not, because when we talk about absolute freedom, then we might end up doing something that will hurt the sentiment of other public, that might hurt the sentiment of other religions. For example, we see the examples of Charlie Hebdo and South Park, and how the West has been practicing freedom of absolute freedom of expression. And overall, we came to the conclusion that freedom is there, and the media should be free, individuals should be free as well, but the freedom must be exercised with some kind of responsibility. So absolute freedom is a concept that might look theoretically very good, but it is not, because we end up harming ourselves and others and their sentiments at times when we are expressing ourselves uh, like freely. Okay, so today I think we should start with the discussion, and since there are a few new students as well, so I want you guys to basically tell me what does freedom mean to you? आपके लिए जो है वो freedom क्या है? Ma'am, the liberty to express our opinion and to be comfortable in sharing our perspective. Okay, and okay, so the liberty to share your opinion, and what do you mean by when you say that be comfortable in sharing our opinion? Like we won't get attacked over our opinion or idea, uh, be it physical attack or emotional and verbal, something like that. Okay. Okay. So, is the freedom of expression the only kind of freedom that you need, और भी किसी किस्म की freedoms हैं जो हमें required हैं? Religious practice. Okay, religious And practice. uh, and also to behave or like to choose the lifestyle we want. Okay, maybe somebody else. If you guys can also pitch in your own ideas of और किस चीज की जो है आपको freedom required है in order to operate in the society. Ma'am, independence to speak and act freely the way you want to. Okay. So Anahil, It could, this independence to act and to speak freely, ये आप किस umbrella में रख सकते हो? What kind of freedom is it? मैम इसमें यही आ सकते हैं ना, रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके पर्सनल एस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं, दैट घर में बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें मतलब कहा जाता है कि अच्छा सिर्फ ये बोल सकता है, वो नहीं बोल सकता है, या फिर घर का एक बंदा बाहर जा सकता है तो दूसरे को अलाउ नहीं होता, या एक ये कर सकता है तो दूसरा नहीं कर सकता, मतलब वो जेंडर रोल्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक ही मुल्क में काफी ज्यादा रिलीजन्स हैं, लेकिन तरजीह सिर्फ एक को दी जाएगी, तो इस तरह करके।
ठीक है. So basically what we are trying to understand here is what Manahil said कि expression तो हम लोग मीडिया के point of view से या वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी in order to operate human beings need to have certain kinds of freedom, right? And freedom, we are all born free and we are all born equal. So equality is a right, that's a human right that we all need. ठीक है. So on the basis of race, religion, color, gender, हम लोगों को कोई unequal नहीं बना सकता. We should have freedom for that. We should have a freedom. Indeed, we should have a freedom to live, like what Delaware said, that you should be able to express freely without a fear that you should be attacked. So basically, freedom to live भी हमारा एक freedom ही है, that we should not be attacked, we should not be enslaved. And I'm sorry, ma'am, I'm cutting you. Can I speak, ma'am? Yeah, sure, Abdullah. Ma'am, I was going to say, like, equality and freedom are both completely different things. It does not mean that if someone has freedom, he has equality, and if someone has equality, they have freedom as well. Because if a class has been shut down, they have equality, but they do not have freedom. Yes, they are not that's what I'm not saying कि एक ही concept है और हम उनको एक ही तराजू में कर सकते हैं. But what I am talking about is the freedom to have equal rights, right? So since we being human beings are born free and equal, ठीक है, so हमारा ये right है कि हम सबको equally ही treat किया जाए, and we should not be discriminated on the basis of जो discrimination हमारे generally चलती हैं, क्या वो gender हो गया या वो race हो गई या वो आपके social economic status हो गए. Okay, so there are a few and you are correct in your opinion that these are not equality and freedom are not the similar things. Even if we will look at the West, जिनको हम कहते हैं जो कि freedom के अलम परतार है, but they don't have equality. If we look at their practices and all, तो उधर equality नहीं है. Even अगर हम ये freedom of expression और freedom of speech ही को लेके चलेंगे, तो आप देखो कि उधर किस हद तक जो है वो कुछ जिसको हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा unequal है. There are certain people जो कि उस सिस्टम पे उनकी हेजमनी कायम है, and there are some people who are the haves not when it comes to the flow of information and flow of communication. We have also seen movements like Black Lives Matters in the US last year, where we saw that equality वहाँ पे practically नहीं है और सालों से नहीं है, and eventually time has come जब लोगों ने अपने rights के खिलाफ आवाजें उठानी शुरू की है. So but they are free states. वहाँ पे यही कहा जाता है ना कि सबको हर चीज करने का की आजादी है, but we see कि equality somehow उधर भी नहीं है, and when they try to speak up for their equal rights, तो वहाँ उनको भी different जो है वो किस्म की जो है वो तरीके से कर्व करने की कोशिश की गई उनका right to speak and right to expression. I'll be very honest, I don't think so there is any part of the world जहाँ पे equal rights मिले हुए हैं, and there is no part of the world जहाँ पे actually freedom जो है वो बड़ी equally सब में distribute की जा रही है. Even the countries that we were talking about in our last class के स्वीडन हो गए या different European countries हो गए या फ्रांस हो गया, उधर भी we have seen के जब वो लोग कुछ इस तरह का काम करते हैं जो कि किसी माइनॉरिटी को जो है वो अटैक करने के इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल इफ दे सेड दैट वी आर गोइंग टू हैव बैन ऑन स्कार्फ वियरिंग, वुमेन हु वियर स्कार्फ, तो वो बेसिकली दूसरे का राइट टू इक्वालिटी है उसको हर्ट कर रहे हैं उधर. एंड व्हेन दोज आर द पीपल जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उनकी गवर्नमेंट ने भी उसको काउंटर करने के लिए डिफरेंट किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल किया. सो इट्स नॉट जस्ट कि प्रैक्टिकली जो है वो फ्रीडम हर जगह पर हमें मिल रही है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रीज व्हिच आर डेवलपिंग लाइक आवर्स, पाकिस्तान और डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज, सम अफ्रीकन कंट्रीज, जहाँ पे ऑलरेडी जो है काफी ज्यादा इकोनॉमिकली भी हम एक हैव नॉट्स में हमारा शुमार होता है. तो और प्लस ये कि इफ वी लुक एट पाकिस्तान ओवर द इयर्स, बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है. कभी जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो सही तरह से नहीं आई, और जिस तरह की डेमोक्रेसी आई वो भी हमारे सामने है. तो उस सिचुएशन में हमारे यहाँ बहरहाल ये जो इक्वल राइट्स होते हैं इनके बारे में बात करना भी एक बहुत बड़ी बात है और इनको समझना भी बहुत बड़ी बात है. सो इश्यू इज नॉट कि हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो नहीं मिल रहे हैं, वो तो पक्का एक दैट्स लाइक अ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर अस, बट द इश्यू इज दैट वी डोंट इवन नो व्हाट आवर राइट्स आर. सो फ्रीडम
जो है वो हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन गारंटीड टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आल्सो व्हिच हैज बीन गारंटीड टू अस, टू ऑल द कंट्रीज बाय द यूनाइटेड नेशंस, और उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें. Wajahat has also added that to have no boundaries to express yourself, and if you can watch or hear something you don't like, you can express your concerns to the other person. Yes, of course, you have the right to, this is your right to hold opinions and to express them, so you can express to the other person. How you can express that, that is again question, because हमने यही बात की थी लास्ट क्लास में कि एब्सोल्यूट नहीं है. तो अगर तो आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा जिसने कुछ कहा है, तो आप उसको किस तरह से बता सकते हो? विल कैन यू काइंड ऑफ यू नो मेक श्योर कि वो बंदा जो है वो लाइक दिस कार्टून कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए आपकी बात से, या आप उसको तमीज तरीके से बताओगे, या आप तमीज तरीके से प्रोटेस्ट करोगे, या आप जो है वो जाके इमारतें जला दोगे और यू नो इस तरह से प्रोटेस्ट रजिस्टर कराओगे. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड when we are talking about freedom. Where were we? So we were discussing कि freedom आपके लिए क्या है, and I'm glad that some of you have participated कि आपके लिए freedom क्या है. I'll just show you two pictures and 2-3 pictures, and you have to tell me कि ये personality जो हैं वो किस तरह के freedom के बारे में बात कर रही हैं. So this is the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, and in his speech जो कि August 11 की थी, and it has become a kind of a very historical speech now. He talked about minorities, and he said that you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. ये किसी ने बहरहाल इस स्पेसिफिक कोर्ट को पहले पढ़ा है या इस स्पेसिफिक एड्रेस के बारे में पहले कुछ सुना हुआ है? उसामा? Ma'am, I have read about this quote, but I am like I have only read this quote on social media, but I haven't read it in the syllabus. Like why it is not included in our curriculum? Why students are not told about this? The Okay. picture of Pakistan, which is Which presented Sukaid to us in wanted. our syllabus, it Yes. is totally different. It is totally different. Let me tell you why. So this was a speech, okay, Excuse 11th me, of... ma'am. Yeah, beta, bolo. Ma'am, I have studied it in my 10th grade Pakistan studies book. Oh, really? This quotation, So, yes, ma'am. what- Yes, ma'am. So have I in my FSC. अच्छा, ठीक है. Yes, So that and means in my कि... FSC as well, ma'am. Okay, that's great. So that means कि करिकुलम में जो है ये इंक्लूड हो गई हुई है. So what really happened with the speech Yes, कि ma'am. ये कायदे आज़म की 11th of August की स्पीच थी, and जाहिर है बिल्कुल. आर्काइव्स में सारी चीजें पड़ी होती हैं, बट पाकिस्तान में there was a time जब एक बहुत इस्लामाइजेशन का पीरियड आ गया था, which is good also because we are like we have been declared a Islamic Republic of Pakistan, but वो जो इस्लामाइजेशन का फेज था 80s और अर्ली 90s का, वो बहुत ज्यादा वी नो कि थोड़ा रेडिकल था, और उससे पहले भी आई मीन देयर वर मूवमेंट्स लाइक दिस. तो देखो, एक होता है नैरेटिव कि आप किस तरह बिल्ड करते हो, एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी हम लोग एट दिस स्टेज, हमारी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान जब से बना है तो एक खास किस्म का जो है नैरेटिव बिल्ड किया गया थ्रू द काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक्स. एक तो करिकुलम जिस तरह का हमें पढ़ाया गया, फिर जिस तरह के पॉलिटिशियंस हमारे रहे, और उन्होंने किस तरह हमें पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जिसमें हमें नहीं यूजली बहुत ज्यादा बताया जाता था. लाइक नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट कि कायदे आजम खुद जो है वो बहुत सेक्युलर नेचर के इंसान थे, ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कायदे आजम आई मीन ये अभी एक कंटेस्टेड किस्म की एक कॉन्सेप्ट है, एंड देयर आर सम स्कॉलर्स हु एग्री ऑन दैट एंड देयर आर मैनी अदर्स हु डोंट, बट ये कंटेस्टेड बहरहाल कॉन्सेप्ट है जो कि पिछले कुछ सालों में सामने आया कि कायदे आजम नेवर वांटेड पाकिस्तान टू हैव अ रिलीजन एज अ स्टेट. कायदे आजम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का कोई स्टेट का कोई रिलीजन हो, बट एक जब कोई भी मूवमेंट चलती है ना इस तरह के इनकलाब में, तो उसमें काफी ज्यादा वॉइसेस होती है, और समहाउ उधर कुछ वॉइसेस जो है वो ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं, कुछ वॉइसेस जो है वो
थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में बहरहाल वहां पे ये एक नारा लगा के जी ये मुस्लिम स्टेट बनेगी, एंड which it eventually became. And then there are other people who say कि no, he just wanted कि state जो है वो because Muslim majority state है तो उसका religion declare हो, but he just wanted के जो हमारे major principles हैं वो कुछ हद तक जो है वो secular state के principles भी हो. Wajahat has asked, don't you think it's basic democracy? Beta, can you clarify what you're asking? It's not democracy. You can call it a secular state in which all religions are allowed to practice their. I'm not sure if I have understood exactly Wajahat kya kehna cha raha hai. So if he'll write, we'll check that. Okay, so about this specific quote, so this was taken from a speech जो कि बड़े अरसे तक जो है वो गायब कर दी गई. गायब करने से मुराद है कि उसको, क्योंकि हम कायदे-आज़म की और काफी चीजें, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन और इस तरह की चीजें बहुत पढ़ते रहते हैं, बट वो बड़े अरसे तक जो है इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया. बट इन द लास्ट 15-20 years we have seen कि दुनिया के ऐसे हालात हुए और फिर एक enlightened moderation का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी दिया गया और इनके ऊपर काफी ज्यादा बात होने लगी. So then the media started highlighting this speech. बल्कि इसका I think अगर आप YouTube पे जाके देखोगे तो वो ये पूरा पोर्शन भी पढ़ा हुआ है. So it's not made up, he actually talked about it. उनकी वॉइस में ये पूरा पोर्शन पढ़ा हुआ है where he talked about that. ठीक है. अब इसके ऊपर वही contested thoughts आ जाती हैं जब आपके फाउंडर ने ही कह दिया है कि that has nothing to do with the business of state. तो did he mean कि हमने secular state बनानी है, या he was just talking about minority rights? But right now what we can establish from the majority point of view that he was talking about minority rights. ठीक है. So here he is again talking about freedom because we are discussing the concept of freedom. And अगर हमने इसको specify करना हो कि ये किस किस्म की freedom के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की थी, so he is basically talking about the freedom of practicing faith, right? So like some of you have said कि I think perhaps दिलावेज ने स्टार्टिंग में कहा था या माहम ने किसी ने कहा था कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो हमें हर किस्म के रिलीजन्स को करने की परमिशन हो. तो ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है. एंड अगेन दिस हैज बीन प्रोमोटेड बाय आवर फाउंडर एज वेल दैट कोई भी मजहब हो हमारी कंट्री में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख्स हो, चाहे वो जो है वो ज्यूज हो या वो एथीस्ट हो, कोई भी मजहब हो, उनको अपना मजहब को प्रैक्टिस करने का पूरा हक है. तो अगर हमारी स्टेट को इस किस्म के लॉज बनाए या इस किस्म की कोई इस किस्म के इकदाम उठाए जिससे हमें लगे कि वो हमारा राइट टू प्रैक्टिस आवर फेथ को कर्ब करने की कोशिश कर रही है, तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी. या हम जैसे कि देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ सालों से एक मॉब कल्चर स्टार्ट हो गया है और कभी जो है वो किसी रिलीजन के ऊपर हमले किए जाते हैं, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी माइनॉरिटी के ऊपर, कभी किसी माइनॉरिटी के ऊपर. तो वो क्या है बेसिकली? दैट इज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन. सो वी नो दैट फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग फेथ इज अ freedom which is guaranteed to us. Okay, then another quote. This is by Malala Yousafzai, and this is quite straightforward. She's talking about, I don't mind if I have to sit on the floor at school. All I want is education, and I'm afraid of no one. So, what kind of right she's asking for here? Education right to education. Yeah, the right to education. The right to education is again Education for girls. Education for girls, yeah, but generally just the right of education for girls. Yeah. And boys, it's equal. It's equal. ठीक है. So I mean, her case was more like कि girls education. But there was a time when on Sawat girls की education में ban लग गया था. So all of the things are from that context. But of course, overall, we have a right to freedom of education. Not just us, like every single citizen in the world. Which means that if our state is unable to provide us the freedom of education and to educate ourselves freely, it could be due to any reason, somehow or other that is a human rights violation. ठीक है. So ये भी एक हमारी right है. Okay, so Wajahat had, I think, written, he has said that, ma'am, when you told us about the big movement, that sometimes some people's voices are more distinguished than the other people in the movement. So, okay, isn't it a democracy? Yes, of course. Democracy is all about the majority ki voices. And democracy
डजंट ऑलवेज मीन कि जी सबके सब ठीक होंगे, और ये भी बड़ा एक कंटेस्टेड किस्म का कॉन्सेप्ट है जो अक्सर पॉलिटिकल साइंस में भी डिस्कस किया जाता है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑफ कोर्स यही था। आई वाज टॉकिंग मोर अबाउट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब कोई खासतौर पे इनकलाबी तहरीकें चल रही होती है ना, उसमें ये होता है। जैसे अगर आप, आई मीन ऑफ कोर्स नन ऑफ अस वर देयर एट द टाइम जब पाकिस्तान बना था, बट ये जो अभी नया पाकिस्तान की एक काइंड ऑफ तहरीक थी या पीटीआई व्हेन इट कम्स टू पावर, सो वी एग्जैक्टली नो कि एग्जैक्टली वहां पे क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू था जब इट स्टार्टेड ऑफ, एंड फिर बाद में उसमें किस किस तरह की नई नई वॉइसेस आती गई। सो स्टार्टिंग में तो हमें लगता था कि सब कुछ ही साफ और शफाफ ही होगा, पुराने लोगों के चेहरे भी नजर नहीं आएंगे, बट इवेंचुअली व्हाट वी सॉ दैट वही पीटीआई है, वही पावर में भी आ गई, एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट। बट काफी ज्यादा वही पुराने चेहरे हैं, वही अब्दुल हफीज जो कि गिलानी के भी सेनेटर थे, अब वो यहाँ पे भी हैं, और अब वो सेनेट के इंतखाबात भी लड़ रहे थे। वही कुछ लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि जी पुराने गवर्नमेंट पे रहे हुए हैं, शेख रशीद जो पीएमएलएन में भी रहे हुए हैं, अब वो यहाँ पे भी हैं। तो बात यही है कि जब कोई तहरीक चलती है तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आपका जो ओरिजिनल मकसद होता है वो जिसको नहीं हम कहते, कोई चीज फौत भी हो जाती है बीच में, ओरिजिनल मकसद। सो पाकिस्तान की तहरीक में भी ऐसा कहीं ना कहीं पे हुआ, एंड दीज आर द थिंग जो कि काफी स्कॉलर्स अब उसके ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि जी शायद कायदे आजम का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, या शायद वो नहीं था, एंड वी डोंट हैव मच टू प्रूव दैट देयर, बिकॉज वही बात है कि पास में जाने का फायदा नहीं है। बट वन थिंग इज क्वाइट क्लियर दैट ही वाज नॉट अ पर्सन हु वांटेड अ पाकिस्तान व्हिच एग्जिस्ट टुडे, जहां पे माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, जहाँ पे you know, even if you are a minority in terms of that your viewpoint is different from the viewpoint of majority, then you will feel unsafe to express your view. तो ये वहाँ बहरहाल सिचुएशन जो थी वो नहीं थी, बट यू आर टोटली करेक्ट दैट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट जहाँ पे जो मेजोरिटी है उसकी राय को माना जाता है। आई थिंक somebody raised hand, was it Usama? Yes, ma'am. I was talking about the same thing, that if we see the case of India, that's a democracy. But Yes. because there is Hindu majority, so they sometimes suppress the rights of minorities. Yes. So even in a democracy, the rights of minorities can't be totally assured sometimes. Yes, I mean India is the closest example for us, because अगर आप पिछले 10 सालों से पहले का इंडिया देखो, it was totally different, and you know, of course secular state है, so we know secular state means के religion का state के functions में कोई ताल्लुक नहीं होता, and which is still the case there, like theoretically तो है, but we just saw that just a change of power to a person जो कि थोड़ा fundamentalist viewpoint का बंदा था, तो उसकी वजह से जो है वो जो मेजोरिटी की वॉइसेस थी, जो somehow उधर उनके अंदर ये चीज थी भी कि they were not very comfortable in seeing the minority people, you know, flourishing, so they started, उनमें से जो वहां पे जो लोग थोड़े radical थे उन्होंने बहुत ज्यादा किया। अभी भी इट्स नॉट दैट कि इंडिया में जो है जितने भी हिंदू हैं वो सबके सब मुसलमानों के खिलाफ है, फॉर श्योर नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि स्टेट की सरपरस्ती हासिल हो गई ना उन कुछ लोगों को जो रेडिकल हैं, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत खुल के बता रहे हैं, एंड दैट सेम हैपेंस एवरीवेयर। वी हैव सीन दैट इन अमेरिका, दैट यू नो वो जो व्हाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है वो तो सालों से चलता आ रहा है, बट उन्होंने मेहनत कर करके कहीं ना कहीं उसको खत्म कर दिया था, बट जब ट्रम्प आया तो वो चीज एकदम से यू नो जस्ट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जितने भी कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज होते हैं मुआशरे में, कोई बहुत फार राइट पे है, कोई बहुत यू नो लिबरल है और लेफ्ट पे है, या आपके सेंट्रलिस्ट होते हैं, या आपके कम्युनिस्ट स्टाइल को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो सारी की सारी आइडियोलॉजीज हर मुआशरे में कहीं ना कहीं होती हैं मुख्तलिफ यू नो ग्रुप्स में। बट जब कोई इस तरह का आपका हुक्मरान आ जाता है जो कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, तो वो वाला जो ग्रुप है ना वो एकदम मेजोरिटी बन के आपके सामने आ जाता है, एंड दे आर लाइक अब हमें कोई रोके, एंड दिस हैज बीन द पैटर्न थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑल्सो, इफ यू कैन सी। अभी हमारे यहाँ भी कोई बहुत, अगर यू नो वी हैव सीन इन द पास्ट, जब अयूब खान की गवर्नमेंट थी या जब भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान एकदम बहुत ही लिबरल स्टेट बन गया था। अक्सर आप लोग पिक्चर्स देखते होंगे कि यू नो वेरी फ्री, एंड यू नो पाकिस्तान बिकेम क्वाइट अ हिप एंड चिक प्लेस फॉर पीपल टू विजिट एज वेल, क्योंकि वो दौर ऐसा था और शायद वो हुक्मरान ऐसे थे जो उन चीज को ज्यादा सपोर्ट करते थे। बट फिर जब वही बाद में कोई जिया की गवर्नमेंट आई, या somehow उधर पीएमएलएन के, अब तो खैर पीएमएलएन काफी ज्यादा हद तक वो लोग लेफ्टिस्ट हो गए हैं, बट जो उनके इनिशियल टाइम था तो उसमें जो है हमारे यहाँ वही जो है पुरानी वाली जो है वो रेडिकलिज्म उसको प्रमोट किया गया। ऑफ कोर्स दुनिया में जो वाकयात और हालात होते हैं उसकी बेस पे भी काफी चीजें जो है वो चेंज होती हैं,
बट ये भी एक ट्रूथ है कि मेजोरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू ही आपकी डेमोक्रेसी को चलाता है, एंड दैट इज अ ब्यूटी एज वेल एज in one way a fault in the democratic system. अच्छा जी, so somehow अभी मुझे ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल हमारी जो है ना पॉल साइंस की क्लास हो गई है। बहरहाल so we have discussed कि जी freedom of religious practices है, also we also have the right to actually practice, not just practice any religion but hold any kind of religious beliefs. जैसे हमारे अक्सर सुनने में आता है ना कि फोर्स कन्वर्जन करवाई जा रही हैं स्पेसिफिकली छोटी उम्र की लड़कियों को सिंध में, कि उनको जो है उनकी शादियां करा देते हैं और उनको कहते हैं आप मुसलमान बन जाओ। ये भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। यू कैन नॉट डू दैट। वी हैव, इवन इफ आई एम बोर्न एज अ मुस्लिम, आई हैव अ राइट टू चेंज माई रिलीजन एट एनी पॉइंट इन टाइम। आई कैन बिकम एथिस्ट इफ आई वांट टू, आई कैन बिकम एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी बेसिक ह्यूमन राइट है कि आपके पास है। अच्छा जी, नाउ दिस इज नॉट अ कोट बट व्हाट डज दीज पिक्चर्स टेल यू? ये किस किस्म की फ्रीडम एक्सरसाइज हो रही है? मैम फ्रीडम ऑफ असेंबली। Okay, yes, this is freedom of assembly, but what I mean, if you see, this is freedom of assembly from the two perspectives. यानी कि Freedom Ma'am, of freedom of expression, voice. I guess. okay, Freedom बताइए। of expression. freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly, जी ये सब तरह की जो है freedom जो है यहाँ पे exercise हो रही है। These are two different eras, ठीक है। One is when PMLN was in the government and the then opposition alliance और mainly जिसमें PTI था वो उनके खिलाफ protest कर रहे थे, and the bottom one is the PDM, अभी की government जब इमरान खान is in the government and they are protesting against him. So वैसे तो हम सोचे तो हमें लगता है कि हमारे मुल्क में तो है एक तरह से तमाशा ही होता रहता है कि हर वक्त ही हर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ना कोई जाके रैलियां निकालना शुरू कर देता है, एंड अ लॉट ऑफ अस आर एक्चुअली, आई मीन वी फ्रीली एक्सप्रेस आवरसेल्व्स देयर कि ये लोग टाइम वेस्ट करें आवाम का भी और अपना भी, बट अगेन दिस इज अ राइट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ना तो उनको गवर्नमेंट मना कर सकती है और ना ही जो है उनको कोई आप उनको नुकसान पहुंचाने का सोच सकते हो, या यू शुड बी एबल टू डू दैट। यू कैन नॉट इवन क्रिटिसाइज, यू शुड नॉट, एटलीस्ट वी शुड नॉट क्रिटिसाइज देम देयर, बिकॉज फ्रीडम ऑफ असेंबली इज अ राइट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस। और फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या कहती है? दैट अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी किसी भी मकसद के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी किस्म की रिलीजियस गैदरिंग के लिए भी अगर आप 1 से ज्यादा 10 से ज्यादा लोग असेंबल होना चाह रहे हो तो दे कैन असेंबल एंड दे कैन do that as long as it is within the parameters of the rules and regulations which have been set by government, which means कि अगर for example दफा 144 नाफिज हुई भी है किसी भी वजह से, हो सकता है कि मुल्क के हालात खराब होने का खदशा हो या ऑलरेडी खराब हुए हैं और कोई दहशतगर्दी का खदशा हो, तो इसलिए अगर हुकूमत ने 144 नाफिज की हुई है तब तो आपको इस तरह की असेंबलीज और जलसाज नहीं कर सकते। बट अगर नहीं हुई भी है एंड यू टेक प्रॉपर परमिशंस, देन आपका राइट है कि आप पीडीएम हो या आप गवर्नमेंट हो, आप जलसे करो, या आप कोई जैसे वो खादिम रिजवी की पूरी तहरीक थी जो वो उन्होंने धरना किया था, वो भी उनका राइट है। या औरत मार्च हो रहा है तो वो भी उनका राइट है। जो सड़कों पे निकलना, अभी आजकल वो पोलियो वर्कर्स और जो है कुछ खवातीन जो है वो धरना दे के बैठी हुई है मुख्तलिफ सड़कों पे, अगर आपका गुजर हुआ हो तो वो उनका राइट है, बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दैट राइट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जी yes ma'am, this is what happens in a democratic country ma'am. This is a exact example of a democratic country. Exactly. So this is exactly the beauty of the government, and again this is something जो कि not is applicable only to in Pakistan but everywhere. So again we have seen कि हमें freedom of religious expression है, हमें freedom of education है, we have freedom of assembly as well. Okay, now that brings us to the topic that we have to discuss. Okay, which is the freedom in the Universal Declaration of Human Rights. So I'm glad that all of you have very specific ideas about what freedom is और किस किस किस्म की freedom होनी चाहिए and how freedom operates in a local setting or otherwise. So we will be discussing freedom in 2 different contexts. So first we'll discuss the international context. We all know United Nations, which is the
तंजीम जो कि दुनिया भर में जो है वो तमाम कंट्रीज का एक उनकी एक असेंबली है एंड ऑर्गेनाइजेशन है विच टेक्स केयर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो यूएन दे एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है एंड दिस वाज proclaimed I think back in 1948. So wo every country which is a part of United Nations is a signatory of that. अदर देन आर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पाकिस्तान है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी जो करंटली चल रहा है 1973 वाला, उसके अलावा जो है कंट्री जो है वो डिफरेंट और भी कन्वेंशंस की सिग्नेटरीज होती हैं। जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन है तो पाकिस्तान ने अगर उस पर साइन कर दी हैं विच वुड मीन कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम अपनी कंट्री में उनको भी फॉलो करेंगे। या OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर दी हैं तो पाकिस्तान में भी वो चीज जो है वो उसी तरह इम्प्लीमेंट होगी बिकॉज हम उसका पार्ट हैं। आई थिंक अभी कल ही एक चीज उन्होंने बताई है कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक आलमी दिन मनाया जाएगा नेक्स्ट ईयर से या मे बी इस ईयर से, और OIC कंट्रीज ने इसकी डिसीजन लिया है। तो जब वो दिन मनाया जाएगा तो वो सिर्फ ये नहीं है कि 2-3 कंट्रीज में होगा, एवरी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान व्हिच इज अ मेंबर ऑफ OIC दैट इज गोइंग टू सेलिब्रेट दैट डे, ठीक है। सो इसी तरह जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, this is basically the crux of the human rights if we have to see it कि human rights कौन कौन से हैं। इन्होंने ये एक बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसमें 30 पॉइंट्स है और वो 30 के 30 जो है वो ह्यूमन राइट्स बता रहे हैं कि ये राइट जो है वो लोगों को हम सबको जो है वो मिले हुए हैं। So there are different human rights which are like not just freedom of expression, इसके अलावा भी ये जैसे हमने भी freedom of education डिस्कस किया या freedom of assembly डिस्कस किया, ये सारे राइट्स इस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। So this universal declaration of human rights was proclaimed back in 1948 in Paris, ठीक है। इसमें it's a common standard of achievement for all peoples and all nations, every nation, every country in the world and every person living there is bound by that. So अगर हमें being a citizen of Pakistan ये चीज जाननी हो कि हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं, तो अदर देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम अगर ये ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को भी देख लेंगे तो वो भी हमारे राइट्स हैं। and if living in this country or any other country किसी सिटीजन को ये लगता है कि उसमें से कोई राइट उसका वायलेट हो रहा है तो वो इंटरनेशनल सतह पे उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकता है। एंड दैट्स व्हाई वी सी के अक्सर और बेशतर UN में जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के बारे में डिस्कशन हो रही होती है और उधर लोग ये बात करते हैं कि ये चीज फॉर एग्जांपल दे वुड से कि सीरिया में ये हो रहा है विच इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि सीरिया इज अ पार्ट ऑफ UN, तो फिर वो उसको जवाबदेह होते हैं उनके जो भी वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं। टोटल 30 पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें डिफरेंट जो चीजें बताई गई हैं उसमें ये है वी आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट यू नो ऑल ऑफ अस इररिस्पेक्टिव कि हम किस तरह के खानदान में पैदा हो रहे हैं, वी आर फ्री एंड वी आर इक्वल, ठीक है। और इसमें एजुकेशन का राइट की बात की गई है, सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, राइट टू असेंबली की बात की गई है, इवन वर्कर्स राइट to seek a safe place to live, ठीक है, which means that if for any reason we are not feeling safe working in our country then we can migrate to another country और वहां पे हम जाके जो है वो रह सकते हैं। फिर वो UN के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू जो है आप बेसिकली रेफ्यूजी बन जाते हैं और उनका पूरा का पूरा भरा लेख है। बट इवन पीपल हु गो आउटसाइड द कंट्री टू वर्क, कोई US जाके काम कर रहा है, कोई जर्मनी जाके, कोई UK जाके, वो भी बेसिक ह्यूमन राइट है। बिकॉज जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही ना होता कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाके काम ही नहीं कर सकते, तो वो कंट्री किस हद तक जो है वो दुनिया जो है वो किस हद तक क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो जाती है, वो जो ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो ही खत्म हो जाता। तो ये सब चीजें जो हैं ये बहरहाल इधर जो है वो बताई गई हैं। ये एनोटेट करने का किसका इतना दिल चाह रहा है, इतना क्या शौक हुआ है एनोटेट करने का आप लोगों को? अच्छा जी, so these are the different things which are mentioned in the Declaration of Human Rights. What I have done, if you will go to module number 1, उसमें एक रीडिंग मैंने अपडेट की हुई है, वो बेसिकली सारा का सारा डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट वो बड़ा एक अच्छा सा क्यूट सा वर्जन है, उसमें थोड़ी डूडलिंग वगैरह उन्होंने की हुई है, तो वो उसके साथ जो है बड़ी सिंपल वर्ड्स में वो एक्सप्लेन किया हुआ है। All 30 points are there, and you have to go and you have to check that reading. वैसे I wanted कि वो मैं क्लास में एक्टिविटी करवा लूँ, but I could see कि
वैसे पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हो गए हैं बट इतने नहीं हुए हैं कि वी कुड हैव एन एक्टिविटी. व्हाट वी कैन परहैप्स डू कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर अपनी एक्टिविटी को करवा सकते हैं रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज वी विल हैव अ टाइम टू रीड दैट. एक दफा पढ़ के आना आप सब लोग, एंड देन वील हैव दैट एक्टिविटी in our next class, and that is going to be a graded activity. So I'll make sure that most of you should be able to attend that. So वो सारे के सारे rights जो हैं उस documents में हैं. What our major concern is going to be is the freedom of expression. ठीक है? So freedom of expression जो है, let me just see how much time is left so that. Okay, अभी तो हमारे पास काफी time है, so we can discuss this. Miss, are you going to send the link for that video you were just talking about? Which video? Miss, the Universal Declaration of Rights. Yeah, video. it's not a video, it's a document, okay, and that document has been updated on Moodle. All right, Miss, Okay. thanks. So you go on Moodle, you go on module 1 को click करो, उसके अंदर जो है वो रीडिंग पड़ी हुई है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अलावा. वैसे आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा बट वो थोड़ा सा बड़े सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका, तो इसलिए मैंने वो एज अ रीडिंग जो है वो उसमें डाला हुआ है. ठीक है, अच्छा. So all those different rights that we are talking about, 30 के 30 वो उधर हैं, तो वो प्लीज आपने पढ़ के आने, and then we'll do a discussion on that. But our major concern is going to be about the things which are related to our field of concern, which is mass media. ठीक है, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो हम मीडिया सिस्टम्स के अंदर जो है उस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में से निकाल सकते हैं. Okay, so yeah, what we were discussing were different kinds of freedom of expression, freedom of speech, freedom of education, freedom of religious rights, and all of that. And of course, we'll further perhaps discuss it in the next class as well. But our concern here while studying media systems is the concept of freedom of expression, कि जो Universal Declaration of Human Rights है that Pakistan is a part of or a signatory of, उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस तरह डिफाइन किया है. एंड इफ इवन समबडी वांट्स टू आस्क यू कि आप कोई डेफिनेशन बताओ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एंड ऑल, देन आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वन दैट यू कैन रिमेंबर एंड देन यू कैन later on use that. So there are different articles. I have told you कि 30 हैं टोटल different articles हैं इसमें जो कि आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं या उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम मीडिया सिस्टम्स में अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं. फर्स्ट इज आर्टिकल 19, देन देयर इज आर्टिकल 20 एंड देन देयर इज आर्टिकल 27. ठीक है, ये सारी चीजें जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये 3 आर्टिकल्स हैं. सो आर्टिकल 19 वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. बाकी आप पूरे के पूरे 30 पढ़ोगे तो उसमें जाहिर है आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 27 भी पढ़ लेना. So what Article 19 is all about? Article 19 of the UN Declaration of Human Rights says that everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. ठीक है, सो दिस इज जस्ट वन स्मॉल सेंटेंस जिसमें उन्होंने जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को समराइज किया है. what it really says, so let us just try to understand it. Okay, so yeah, it says everyone has the right to freedom of opinion and freedom of expression. So the first right which is provided to us is basically the freedom of opinion, right? By opinion what they mean कि हम लोगों का being human beings ये right है कि हम किसी भी किस्म की opinion रख सकते हैं. ठीक है, it doesn't have to do anything with the social system that you are in and the religion that you are born in and all. Opinions हमारा personal matter है. Why they are talking about it? Because दुनिया में ऐसी ऐसी countries भी हैं जहाँ पे लोगों को कुछ खास किस्म की opinions भी रखने की जो है वो permission नहीं होती, या वो society के pressure में जो है वो अपनी opinion ही सही तरह से जो है वो
फॉर्म नहीं कर पाते. This also mean that in order to form any opinion, what do we really need? We basically need a free flow of information, which means कि जब तक हमें information हम receive नहीं करेंगे, it would be difficult being a human being for us to form any kind of an opinion. ठीक है, जब तक हमें नहीं पता होगा कि जैसे अभी हमने पाकिस्तान की थोड़ी सी पाकिस्तान मूवमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री टच अपॉन की थी, तो जब हमारे करिकुलम में से या हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में से एक स्पेसिफिक स्पीच का एक पार्ट ही निकाल दिया जाएगा, तो हमें कभी ना कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि कायदे आजम किस बारे में क्या चीज सोचते थे. एंड देन इन ऑर्डर ऑफ in accordance to that, it would be difficult for us to form an opinion on how minority rights should be practiced in Pakistan. So it is important for us to hold opinions, and then it is important to us to express those opinion in a free manner, which means that if I hold an opinion, for example, again this is an example, please don't hold it against me. For example, अगर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान should be a secular state and it should not have any religion, like जैसे इंडिया का नहीं है या यूएस का नहीं है, काफी कंट्रीज का नहीं है, सेक्युलर स्टेट बनना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ थियोलॉजिकल स्टेट. सो ये मेरी ओपिनियन है और इसको एक्सप्रेस करने का राइट मुझे है. बट जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर कोई इस तरह की चीज आप लिखते हो किसी न्यूज़पेपर में, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, तो आपको लगता है कि उसके रिपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? यस मैम, काफी स्वेयर. अभी करंटली जो सिचुएशन है हो सकते हैं, बिकॉज क्या कहा जाएगा कि आपने अपनी स्टेट की आइडियोलॉजी के खिलाफ बात की है. we know that there are people who, यानी कि जैसे डॉक्टर मेहदी हसन इज अ वेरी फेमस स्कॉलर एंड ही टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स, बट उनको जनरली अच्छे अल्फाज में जो है वो हमारी स्टेट नहीं देखती है या नहीं याद रखती है. उसकी वजह ये है कि हाँ, उसामा हैज रिटन ही probably would have to apologize, या आपको बाद में apologize करना पड़ेगा. So it might not be taken very lightly that way. ठीक है, so again, but this is a right which has been provided to us by the UN Declaration of Human Rights. So everybody has the right to freedom of opinion and expression. This right includes, आगे इन्होंने इसको मजीद जो है वो थोड़ा सा explain किया है, that this right includes freedom to hold opinions without interference. अपनी इंटरफेरेंस के बगैर जो है हम कोई भी ओपिनियन जो है वो होल्ड कर सकते हैं. एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज through any media regardless of frontiers. So this part अगर हम इसको जो है मजीद deconstruct करें कि of course you know कि to hold opinions without any interference and to seek by seeking an opinion, here they are basically refer to the freedom of information, which is also called like generally FOI, freedom of information, या free flow of information के नाम से हम कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सीख करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इनफ प्लेटफॉर्म्स, मीडियम्स जिनको कहते हैं, या मीडिया होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए किसी भी बंदे के लिए. जब हम आगे जाके जो है, पहले हम क्योंकि आर्टिकल 19 और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाके हम जो है वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस भी पढ़ेंगे पाकिस्तान का. तो उसमें बेसिकली यही चीज है दैट बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, अगर आई वांट टू सीक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट, तो वो मुझे इजीली अवेलेबल होना चाहिए. और फिर स्टेट वो किस तरह प्रोवाइड करेगी, उसके लिए उसने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वो सारी एक पूरी की पूरी एक लीगल फ्रेमवर्क उसके लिए डिजाइन होता है. तो ये सीकिंग वाला जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से, और ऑफ कोर्स यूएन जो है इसको प्रोमोट करता है. देन द नेक्स्ट थिंग इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन, व्हिच अगेन मींस कि जब हमने इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसको रिसीव करने, हम किस तरह रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को? ऑफ कोर्स वी रिसीव इट थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, व्हिच मींस कि देयर शुड बी इनफ आउटलेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन द मीडिया. सो वो पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी शुड बी एबल टू सीक इंफॉर्मेशन, उसको रिसीव इंफॉर्मेशन हम करने के लिए ओपन आउटलेट्स ऑफ कम्युनिकेशन होने चाहिए. तो अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो टिकटॉक के ऊपर बैन लगा रही है, अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर बैन लगा रही है, सो समहाउ अदर वो यहाँ पर चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है. एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, दैट डजंट ओनली मीन कि हमने इंफॉर्मेशन सीख कर ली, उसको रिसीव कर लिया, हम उसको मजीद आगे इम्पार्ट भी कर सकते हैं. ठीक है ना? दिस इज वेयर द, यानी कि वैसे अब तो हर बंदा ही जो है वो इस रोल में आ जाता है, बट जो हमारा जर्नलिज्म है या जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका यहाँ पे काम आ जाता है. ठीक है, कि जर्नलिस्ट क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, विच मीन्स कि जर्नलिज्म की प्रैक्टिस को भी प्रोटेक्ट करता है ये हमारा
UN declaration ka article 19, and it's not just journalists, it's also your artists, and it's also your people who are in performing arts and all of that. ठीक है? So we have a freedom to hold opinions and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. ठीक है? So again here they are talking about कि किसी भी किस्म के मीडिया से, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल मीडिया हो, चाहे वो आपका न्यू मीडिया हो, चाहे वो आपका जो है वो जो जैसे अभी गाँवों वगैरह में इस तरह के जो स्ट्रीट थिएटर्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती है, वो भी मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं. सो हर किस्म के मीडिया के थ्रू मिल सकती है, एंड फ्रंटियर्स की भी कोई कैद नहीं है. ठीक है? सो आई मीन इफ वी सी इट इन प्रैक्टिकल टर्म्स, तो असल में करंटली जो इंफॉर्मेशन का एक सिस्टम है वो है भी ऐसा कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस है. वी हैव ऑल द फ्रंटियर्स. हम पाकिस्तान में बैठ के जो है वो कोई भी किसी भी किस्म के आउटलेट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. बट देन देयर आर सर्टेन टाइम्स एंड देयर आर सर्टेन स्टेट जो कि इस किस्म की चीजों के ऊपर पाबंदी भी लगाती हैं. कैन समबडी गिव मी एन एग्जांपल जहां पे आप किसी एक कंट्री में बैठ के किसी दूसरी कंट्री की फॉर एग्जांपल उनका मीडिया नहीं देख पा रहे हैं? Ma'am, China, I think there is ban on so many things in China. Yes, on China, I mean, जितना भी वहाँ के like they don't use social networks. And जो ma'am, North Korea. Yes, North ma'am, in Korea, North Korea. exactly. ठीक है. Iran, again, one of the examples. Zunaira, you want to add something? Ma'am, Palestine, occupied Kashmir. Yes, occupied Kashmir and Palestine. We have seen कि जब आर्टिकल 370 इंडिया ने जो है वो उसमें कुछ उनकी चेंजिंग्स की थी, और इंडिया ने जो एक लॉकडाउन लगाया था कश्मीर में बैक इन 2019, तो कितने अरसे तक उधर तमाम किस्म की कम्युनिकेशन बंद थी. ऑल्सो इफ वी जस्ट लुक एट इट, तो हमारे यहाँ भी जो है पाकिस्तान में कुछ कंटेंट है ना, जो इंडियन कंटेंट हम लोग नहीं दिखाते हैं या बंद किए हुए हैं, उनके चैनल्स बंद किए हुए हैं, उनकी वेबसाइट बंद की हुई हैं. उसको अगेन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट बिकॉज दैट हैज टू डू, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल दीज थिंग्स ये वैसे सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर जब प्रैक्टिकली आए तो एट टाइम्स नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बाकी Ma'am, चीजों they से have also done the same with they have also Pakistani done the same content. with us. तो हम लोग उनका Yeah. कंटेंट नहीं देख पा रहे हैं या हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं. तो ये एक तरह की सेंसरशिप ही है जो कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के ऊपर लगाई हुई है. उन्होंने हमारे आर्टिस्ट के ऊपर सेंसरशिप लगाई हुई है. ठीक है? और चाइना ने जो है उनका अपना ही, वो गूगल यूज नहीं करते, उनका अपना ही सर्च इंजन है. सो समहाउ अदर दे आर कर्बिंग दिस राइट ऑफ द, दे आर बेसिकली यू नो जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर देयर ओन कंट्रीज, फॉर देयर ओन पीपल. सो वो यूएन का जो है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसके अगेंस्ट जाता है. या ऑफ लेट अगर आप पाकिस्तान में भी देखो तो जैसे लास्ट ईयर सोशल मीडिया रूल्स इन्होंने नाफिज किए, या इस तरह के जब रूल्स आते हैं तो हमारी सिविल सोसाइटी क्यों इतना शोर मचाती है और वो ये क्यों कहती है कि यूएन के असूलों के खिलाफ है, बिकॉज वो इसी में से किसी ना किसी पॉइंट की नफी कर रहे होते हैं. देन दे यू नो दे कैन फाइंड देयर ओन, एक पूरी उस पर डिबेट स्टार्ट कर देते हैं कि ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो हैं बहरहाल ये हमारे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है उसके अंदर जो है आर्टिकल 19 में आती है. आर्टिकल 19 इज ऑल्सो वेरी लाइक, जिसे कहना चाहिए ना एक it's like a benchmark also for any kind of debate that we will discuss in media. आप कभी भी मीडिया सेंसरशिप या पाकिस्तान में करंट स्टेट ऑफ मीडिया के बारे में कोई आर्टिकल्स पढ़ो तो उन्होंने यूजली आर्टिकल 19 का ही जिक्र किया होता है. एंड ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट के आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन डिक्लेरेशन जो ये एड्रेस हुई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सब्जेक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी आर्टिकल नंबर 19 में ही एड्रेस हुआ है. तो इसलिए वो बड़ा एक बेंचमार्क सा बन गया है फॉर डिस्कसिंग एनी काइंड ऑफ डिबेट्स अंडर द यू नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जर्नलिस्ट की फ्रीडम in any media system around the world. So this is what article 19 is all about, and of course there are certain other articles as well. वो मैं अभी discuss नहीं कर रही हूँ, so I am leaving it here for you guys. If you want to read more about it, so please एक तो पहली आपने reading ये करनी है जो मैंने already Moodle पे update की हुई है, so do read that. That is an important one. But the other thing that you must read is basically if you just go on Google and write press freedom in Pakistan या इस तरह की कोई सर्च टर्म
करोगे तो आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे. सो इफ यू हैव टाइम जस्ट रीड अ फ्यू आर्टिकल्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी करंटली पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच में वेयर डू वी स्टैंड, बिकॉज इवेंचुअली हमने सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे या यूएन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कवर नहीं करना, हमने अपना भी आर्टिकल 19 जो है वो डिस्कस करना है और उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो डिस्कस करनी है. ठीक है. Okay, so I assume there are not many questions, which always happens in online classes, so that's okay. But another thing, as far as this class is concerned, even you have the right to absolute freedom of expression in this class. So whenever we are having discussions and all, अपनी social responsibility को मद्देनजर रखते हुए, you are free to, you know, if you think that your point of view is different from the entire class, that doesn't mean that you should go into silence and you don't discuss things. अगर आप किसी चीज से disagree करते हो, कुछ करते हो, then of course politely raise hand and you know you can discuss your views, and then we can you know later on discuss that, but just make sure that it doesn't have to be anything जिससे किसी के sentiments hurt हो या कुछ हो, because generally ये जो class है media systems की, ये आप आगे आप जाके जितने भी मैथ कॉम के कोर्सेज पढ़ोगे जो कि थोड़े यू नो हायर लेवल कोर्सेज है 300 and 400 लेवल के, उसमें द मोर यू विल डिस्कस थिंग्स द बेटर इट विल बी फॉर अस, बिकॉज वी आर कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, और कम्युनिकेशन पढ़ते हुए ही अगर अपने आप को फ्रीली कम्युनिकेट ना कर पाओ तो दैट्स अ वेरी यू नो पैराडॉक्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन. वो क्या कहते हैं कि खुला तजाद सा लगता है वो. तो इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू हैव ओपिनियन आइदर इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी टू द मेजॉरिटी व्यू, you must discuss it in the class. उससे कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर होते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ी क्लास भी ज्यादा इंटरेक्टिव होती है. सो उसामा इज आस्किंग एब्सोल्यूट फ्रीडम है क्लास में. एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू के बेसिकली उसी टर्मिनोलॉजी में है कि थोड़ी सी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करते हुए. आई मीन डेफिनेटली आई डोंट वांट यू कि आप क्लास में किसी को गाली निकालो, एंड आई डोंट वांट यू के ऑनलाइन जो है वो कुछ अजीबो-गरीब किस्म की हरकतों से ना हमें आपके वीडियो चैट्स पे देखनी शुरू हो जाए. But other than that, you are free to discuss anything in the context of your ethical boundaries. I'll be very honest, generally when we used to have this class on campus, like जब सब students on campus होते थे तो बड़ी heated discussions भी होती थी और interesting भी वो discussions होती थी. But online वो चीजें replicate करना बड़ा difficult हो जाता है. So I would really want you guys के अपने थोड़ी सी comfort zone से बाहर आके, I have seen some of you participated very well in the class today, but the other ones who have not, so थोड़ी सी अपनी comfort zone से बाहर आके भी अगर discuss करोगे, even if you are completely wrong, अगर आपका आंसर ठीक भी नहीं है या आपका व्यू आपको लगता है कि बहुत ही minority व्यू है, still you have to discuss it, because that's what is the beauty of you know classes at this level of university. All right, so we are done for today, and now in our next class you already know the agenda. Reading padkar aani hai, then we'll have an activity. I have already clarified this, that all the activities are going to be like graded, so it won't be कि मैं 10 number में से number दूंगी, but for example if all of you who will attend the next activity, तो उन सबके मैं ++1 लगा दूंगी, और फिर at the end of the semester जितनी ज्यादा activities जिस student ने की हुई होती हैं उनके उस हिसाब से जो है वो उस head में marks आ जाते हैं. So please do attend that activity in the next class, and I would advise all of you to come on class on time. There are 2 students who left the class after attendance, तो उन शहजादों को भी मैं पकड़ लूंगी रिपोर्ट्स डाउनलोड करके. Don't worry about that. Now I'll see you on Thursday at 3:30. Okay, all right everyone.